Hello everyone. Today we are going to talk about a new exercise 12.6. In this exercise we will apply the same method, same formulas, but the functions are different. In this exercise we are going to discuss about a homogeneous function. So first of all I want to introduce you about a homogeneous function. What is the definition of a homogeneous function and how will we justify or identify the given function is a homogeneous function. But before it, I want to remind again exercise 12.4 and 12.5. In the 12.4 we discussed about a function in which we can easily separate the variables like I with the dx and y with the dy. And in the next exercise x we could not able to separate x and y with the like terms, means x with the dx and y with dy. So to solve these type of the cases we use the substitution method and then we apply the proper method for the integration. And now in this exercise, actually what is the matter? Let's suppose a function is given. I am talking about this exercise. A function is given 2x to the power 3 upon x cube. Let's suppose I am taking an example in this manner. इतना इजी तो नहीं आएगा किसी भी एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी अपन समझने के लिए डिस्कस कर लेते हैं. पावर हियर वेरिएबल इज x and here also variable is x. What is the power of this variable is 3 and in this case the power of this variable is also 3. देखो यहाँ से इसकी पावर और इसकी पावर दोनों की पावर क्या है, सेम है. तो ये जो केस बनेगा इसको बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन. इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल in numerator and denominator in the both the cases are same, then we can say that the given function is a homogeneous function. Let's I'm taking the another example. In two variables a function is given in variable x and y. X square plus xy upon y square. Okay, look here, x is a variable and y is also a variable. Variable square, variable into variable upon variable square. So variable square plus variable square upon variable square and 2 into variable square upon variable square. The powers are again same. So it means this is also a homogeneous function. चलिए अपन नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज ऐसे दे रखा है e टू द पावर x अपॉन y अपॉन x स्क्वायर x अपॉन y. चलिए यहाँ पर भी देखो ये एक रेशनल नंबर है x अपॉन y के फॉर्मेट में एंड दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y. पावर ऑफ द बोथ द वेरिएबल्स इज सेम, सो इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन. आर यू एग्री? अब देखो हम इनको जज कैसे करें, हाउ विल वी आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन. देखो अपना फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. लेट्स सपोज रैंडम क्वेश्चन है, अभी हम एग्जाम पेपर कर रहे हैं मान लो और हमें ये क्वेश्चन सामने आया. वैसे तो प्रैक्टिस से आप जजमेंट कर पाओगे हर एक क्वेश्चन के बारे में कि ये होमोजीनियस है या फिर हमें सेपरेट करके करना है या अपन को सब्स्टिट्यूट करना है. हाउ विल वी डू? यू विल आइडेंटिफाई इजीली. बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस हाउ कैन वी जज अबाउट इट? देखो वैसे तो एक्सरसाइज 12.6 पूरी इसी पे है, तो हमें यहाँ तो जजमेंट करने की जरूरत नहीं है. बट मिसलेनियस करें या फिर कोई रैंडम क्वेश्चन हो तो उसके लिए तो जरूरत पड़ेगी ना कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें इसके अंदर. तो सबसे पहले तो अपन ये करेंगे कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे. अपन एक देखो वैसे बहुत लंबी प्रोसीजर है लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा एक बार ध्यान देना. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू सेपरेट द वेरिएबल्स विद द dx एंड dy. क्लियर? इफ पॉसिबल देन, if it not possible then we will apply the formula dy by dx, means we will equate all the variables with respect to dy upon dx. Are you agree with it? And after it we will check. देखो मान लो कि आपने ऐसे कोई फंक्शन दे रखा है, कैसे भी मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 2xy जैसे यही मान लेते हैं 2xy dy. अब इसको सेपरेट करने ये क्वेश्चन देखा हमें, तो हम इसको पहले सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम x के साथ में x को सेपरेट करें और y के साथ में y को सेपरेट करें. क्लियर? बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, हो जाना चाहिए. अब हमने ट्राई किया, वी ट्राइड बट वी डिड नॉट गेट सक्सेस. बट बिकॉज दिस x and y both and similarly this was also these are also
वी कैन नॉट एबल टू सेपरेट विद डी। देखो ये x तो आ जाएगा लेकिन ये y रह जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? और यहाँ से ये x और y दोनों ही इसके साथ हैं, मतलब y तो चलो y के लाइक टर्म हो गया लेकिन x रह गया, तो मीन्स हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अब कैलकुलेट कर लो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इजी। तो ये क्या केस बन गया, ये बन गया अपने पास कैसा, अब देखो यहाँ पे इसकी पावर 2 एंड यहाँ से भी पावर 2 बन रही है, तो वेरिएबल की पावर 2 बन गई, कुछ ऐसा केस बन गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन, तो मतलब बड़ा ही इजी रहता है इसको जज करना, वैसे ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं है, तो आप जज कर लोगे। एक प्रोसीजर यदि आप फॉलो करोगे तो इजीली आराम से समझ में भी आएगा और आप जजमेंट भी कर पाओगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। सो लेट्स प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग द टाइम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.6 and the given question is find the solution of the following differential equations. There are total 10 questions and one by one I am trying to solve, और आप भी रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। x स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो हमें ये स्टेटमेंट दे रखा क्लियरली। अब ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, यहां से सीधा जज करते हैं। देखो डी एक्स में वेरिएबल आपके पास ही है, y में वेरिएबल, तो वेरिएबल प्लस वेरिएबल हमेशा वेरिएबल ही बनता है। क्लियर? हाँ, x और y को हम ऐड नहीं कर सकते लेकिन है तो वेरिएबल ना, तो ये बना वेरिएबल क्यूब, मतलब बनेगा फाइनली वेरिएबल क्यूब, और ये भी क्या है, वेरिएबल रेज़ टू द पावर 3। तो मतलब कि दोनों ही सिचुएशन में आपके पावर कैसी है, 3 है। इसका मतलब ये जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पोजीशंस में आएंगी तो उस टाइम में आपका ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट और अरेंज बोथ द टर्म्स ईदर साइड ऑफ द इक्वल। तो अपन यहां से लिख सकते हैं x स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट dy अपॉन डी एक्स, dy बाय, आप dx अपॉन dy भी कर सकते हैं। किसी किसी स्पेशल केसेस में हम ट्राई करेंगे ऐसा करने के कि हम dx अपॉन dy करें। वो कब करेंगे अपन किसी एक एग्जांपल से समझेंगे, और इसके पीछे की थियरी क्या होगी उसके बैकग्राउंड पे भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, वो केस कब आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। dy बाई डी एक्स अपन ने लिखा तो ये डिनोमिनेटर में ये उधर चला जाना है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने यहाँ से प्योरली आइडेंटिफाई कर दिया है कि दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो लिख दीजिए द गिवन फंक्शन और द इक्वेशन फर्स्ट, या फिर लिख देते हैं अपन द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस। क्लियर है बात यहां तक? अब ये होमोजीनियस फंक्शन बना अपने पास। अब होमोजीनियस फंक्शन बना तो हमें करना है क्या, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो इसके लिए एक प्रोसीजर रहेगा, आपको ये फॉलो करना होगा। हम यहाँ पर देखो किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रखा अपन ने y को x के रेस्पेक्ट में, y को x के रेस्पेक्ट में कर रखा है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, y को आपने x के रेस्पेक्ट में कर रखा है। तो y को अपन को किसी एक वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है, और यदि आपने dx अपॉन dy ले रखा है, इन दिस केस वी आर डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू y, तो उस सिचुएशन में आप तो x को किसी एक दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हम y को सेपरेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू हम vx कंसिडर कर लेंगे। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, vx कंसिडर कर लिया, इससे कि हम प्योरली हम y को रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से, और हमने कोई दूसरा नया वेरिएबल यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। क्लियर बात यहाँ तक? हम y की वैल्यू वापस अपन ने देखो चेंज क्या किया, y इज इक्वल्स टू vx। कहने का मतलब ये हो गया अपन ने v अपॉन x इज इक्वल्स टू y रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। हम वापस से y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे लास्ट में। चलिए फिर आगे, अब देखो यहां से dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करना, dy बाई dx। तो इसको डिफरेंशिएट करना, u वाला फंक्शन हुआ फर्स्ट एज इट इज, सॉरी v है,
first as it is and differentiation of x will be 1 plus x as it is and differentiation of the v will be dv upon dx. Clear है बात यहाँ तक? Let's suppose it is the equation number second and this is the equation number third. Using equation first, second and third means I am applying all these both the values in this case. From equation first, this term will get dy by dx. देखो अपने पास बना v plus x dv upon dx. ये बन गया v plus x dv upon dx, which is equals to x square into y is vx upon x cube plus y is vx whole cube. Got it? Now simplify this one. इससे क्या होगा, आपके पास x कैंसिल हो जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये बना x क्यूब v अपॉन x क्यूब प्लस x क्यूब v क्यूब. क्लियर बात यहाँ तक है? अब यहाँ से x क्यूब कॉमन आएगा, देखो x क्यूब, तो रिजल्ट विल बी v इज इक्वल्स टू x dv by dx. X cube is common in the denominator, 1 plus v cube, this cancel by this, और सॉरी यहाँ पे प्लस है, और v को भी साथ में ट्रांसपोज कर लीजिए क्योंकि अपने पास यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल बचा है जो कि क्या है, v. तो मैंने v को ट्रांसपोज किया तो इधर रह गया x, देन dv by dx इज इक्वल्स टू v क्यूब है ना, v क्यूब upon 1 plus v cube minus v. Am I right? Yes, I'm right. Then x dv by dx is equals to v cube, LCM v minus v to the power 4, v minus v to the power 4 upon 1 plus v cube. ये v क्यूब कहाँ से आ गया, ये v तो था ना, ये v रहा, चलो यहाँ पे v है सिर्फ, ये भी v, और ये हो गया इससे कैंसिल. क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब आगे जो बचा, x dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी टू द पावर 3. अब वही केस, अब सेपरेट हो जाए, देखो v वाली टर्म इधर ले लो और x dx इधर आ जाएगा. इससे क्या बनेगा आपके पास, 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर 4, देन डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x dx. इज इट क्लियर? थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेट करें, डिनोमिनेटर सेपरेट करें, तो 1 अपॉन वी टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x dx. लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 4. ये अपने, अब हम यहां से इंटीग्रेशन कर देंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं ये v के रेस्पेक्ट में और ये x के रेस्पेक्ट में, तो यहां लिख रहा हूं ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट. So the resulting values are 1 upon v to the power 4 plus 1 upon v dv is equals to minus 1 upon x dx. अब इंटीग्रेशन करना है तो ये ऊपर जाके बनेगा v टू द पावर माइनस 5. तो रिजल्ट देखना क्या आएगा, v टू द पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन होगा v टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, और अपन इसको माइनस ये बोल सकते हैं, और ये हो गया, अपन इसको लिखें तो माइनस 4v टू द पावर 4 बोला जा सकता है. क्लियर? तो फाइनली अपने पास आंसर आया इसका माइनस 1 अपॉन 4v टू द पावर, ये 4 है ना, सॉरी, तो फिर तो यहाँ पे 3 आएगा, 3v टू द पावर 3. यदि 5 होता तो 4 आता, अब यहाँ पे 4 है तो आएगा 3, और ये बना आपके पास log ऑफ v इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ x एंड प्लस
मोस्टली लॉग में है तो आप कांस्टेंट भी आप लॉग में कंसिडर कर सकते हैं, और यदि आप सी ही यूज़ लेना चाहते हैं तो सी यूज़ में ले लो। अब log v और x को सेपरेट करें तो इनको एक तरफ ले लो, इसको इधर ले आओ, या फिर इसको इधर ले लो। इससे क्या बनेगा, या कैसे चेंज करें, इसको इधर लोगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर ले लो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो log v प्लस log x माइनस log c इज इक्वल्स टू 1/3 v क्यूब। ये स्टेटमेंट बना, और हम इसको लिख सकते हैं log vx अपॉन c इज इक्वल्स टू 1/3 v टू द पावर 3। अब v की वैल्यूज अप्लाई कर दो। v क्या आपके पास, v इज इक्वल्स टू y अपॉन x रख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5th। फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 5th रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो हमें log v इज इक्वल्स टू y अपॉन x, y x अपॉन x c इज इक्वल्स टू 1/3। तो y अपॉन x होगा तो x ऊपर चला जाएगा, देन x क्यूब अपॉन y क्यूब। बात समझ में आई होगी शायद। चलिए और थोड़ा एडजस्ट करते हैं। log को यहाँ से इधर ले आओ तो ये के फॉर्मेट में आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, एंड y अपॉन c इज इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब अपॉन 3y क्यूब, ये बना। एंड फाइनली y इज इक्वल्स टू c इंटू e टू द पावर x क्यूब अपॉन 3y क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अब आंसर क्या है बुक में वो मुझे पता नहीं, मे बी यू विल सॉल्व फर्दर देन यू विल गेट योर आंसर, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज योर फाइनल आंसर। आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन वैल्यू रख देना आप, ये एटलीस्ट y की वैल्यू रख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो वो भी एक आपका आंसर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ दिस वन क्वेश्चन, सो प्लीज पोस्ट दिस एंड नोट इट डाउन। Now let's discuss on next question, question number 2nd, and given question is dy by dx is equals to y by x plus sin y upon x। चलिए देखो सेम कंडीशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर 1 और यहाँ पर भी पावर 1, तो अपन बोल सकते हैं ये फंक्शन कैसा है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। सो द गिवन फंक्शन इज ए होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हमें क्या करना, y इज इक्वल टू वही सिंपल सा केस v x मान कंसिडर कर लेना है, लेट y इज इक्वल्स टू vx। y इज इक्वल्स टू vx अपन ने यूज लिया है, देन अब हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए, then dy by dx is equals to v plus x dv upon dx, equation number 3rd, and this is the equation number 2nd। चलिए फिर आगे, ये वैल्यू यहां पे अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd। वैल्यू जाएंगे आपके पास v plus x dv upon dx, v plus x dv upon dx is equals to vx upon v, x है ना डिनोमिनेटर में, x प्लस साइन vx upon x। ठीक है यहाँ तक। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, v प्लस x dv upon dx is equals to v प्लस साइन v से v कैंसिल हुआ, रिजल्ट अपने पास आया x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन v। अब वही सेम केस, इनको एडजस्ट करना है, v के साथ में v कम ट्राई करो और x के साथ में x को ट्राई करो, तो ये बनेगा dv अपॉन साइन v। ये इधर आया तो डिनोमिनेटर में आएगा, dx न्यूमरेटर में अपॉन और x डिनोमिनेटर में। क्लियर है बात यहाँ तक। अब इसको करना आपने कोई डिफरेंट इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर 4th विद रेस्पेक्ट टू v एंड x इन द ईदर साइड्स। तो इसको v के रेस्पेक्ट में करेंगे,
ये इंटीग्रेशन के लिए आपकी लैंग्वेज हो जानी है डी वी अपॉन साइन वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है यहां तक। और 1 अपॉन साइन को अपन 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास कोसेक वी डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। इसके लिए फॉर्मूला बन गया आपके पास लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। क्लियर? इज इक्वल्स टू लोग ऑफ एक्स प्लस सी, और सी भी आप में लोग में ही ले लो, लोग सी। ठीक है बात यहां तक। ये बनेगा यहां से लोग कोसेक एक्स माइनस कोट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स सी। लॉग से लोग कैंसिल, और रिजल्ट अपने पास आएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सी। अब वैल्यूज अप्लाई कर दो। लेट्स सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 5th फ्रॉम 2nd एंड 5th। ये एक्स नहीं है, सॉरी, यहाँ पे v है। अब v की वैल्यू अपन यहां अप्लाई करेंगे तो v अपने पास है वहां से y अपॉन एक्स, देन कोसेक, या फिर कोसेक v और कोट v को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कोसेक v को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन v, और इसको लिख सकते हैं कोस v अपॉन साइन v इज इक्वल्स टू एक्स सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, लेकिन शायद आंसर आगे हो सकता है, तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 1 माइनस कोस v, 1 माइनस कोस v, और ये हो जाएगा साइन, डेनोमिनेटर साइन v इज इक्वल्स टू एक्स सी। 1 माइनस, देखो कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू, देखो पहले तो अपन यूं लिखते हैं इसको, कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बात यहां तक। तो ये 1 माइनस कोस टू एक्स के लिए अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस, तो यहां एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2, तो ये आएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, और ये साइन 2x की आइडेंटिटी यहां अप्लाई कर रहा हूं, 2 साइन एक्स, सॉरी एक्स की जगह पे क्या आएगा v, साइन v इंटू कोस v, लेकिन v यहाँ पे v बाई 2 के फॉर्मेट में होगा, इज इक्वल्स टू एक्स सी। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट आया साइन अपॉन कोस विच इज tan v बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स सी। अब अपन वैल्यू अप्लाई करते हैं किसकी, v की, और इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5th फ्रॉम 5th एंड 2nd। तो ये बना आपके पास tan v क्या है आपके पास y अपॉन एक्स, तो y अपॉन 2x इज इक्वल्स टू एक्स सी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। Okay student, I hope you understood, so please note it down. Now the next third question, x dy by dx plus y square upon x is equals to y. अब यहां से ये जज नहीं हो पा रहा कि ये आपका होमोजीनियस है या फिर कोई नॉर्मल फंक्शन है, तो पहले तो अपन यही काम करते हैं। देखो इसको तो इधर लाना ही है, तो चलो ये काम तो करो। x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, और यहाँ से अपन इसको बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये क्लियर हो गया कि ये कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस।
वेरिएबल टू द पावर 2, और ये भी आपकी क्या होगी वेरिएबल टू द पावर 2, और ये भी क्या होगी वेरिएबल टू द पावर 2। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये फंक्शन वो आपका होमोजीनियस, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेबल करते हैं, द गिवन फंक्शन इज ए होमोजीनियस फंक्शन। लेट्स सपोज y is equals to vx, then dy by dx is equals to v plus x dv upon dx. इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या क्या मिलेगा हमें? dy बाई डी एक्स हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज, y इज वी एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर में बचेगा v माइनस वी स्क्वायर, तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, v माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल बाई ईच अदर। ठीक है, v इधर आएगा, ट्रांसपोज किया आपने, तो क्या बना अपने पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, कैंसिल। जो जो वैल्यूज बची हैं वो मेंशन कर दीजिए। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर। नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स, तो ये आएगा आपके पास डी वी, या इस माइनस को साथ ही ले लीजिए क्योंकि एक इंटीग्रेशन करेंगे उस सिचुएशन में माइनस का होगा, तो ये लिख रहा हूं मैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर चलो यही रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक्स अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर फोर्थ, on integrating the given equation or the equation number fourth with respect to y and in this case with respect to x, तो इंटीग्रेशन अपना क्या होगा dv by v square is equals to dx upon x। तो ये ऊपर जाके बनेगा v to the power minus 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा v to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, तो ये आएगा v to the 1 upon minus v 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, ये बना log x, और इसको भी log c बोल दो, कुछ भी बोल दो, log c बोल दो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये माइनस भी था ना, इसके यहां था माइनस, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, चलो ये हो गया माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू log c माइनस log ऑफ x, और इसको अपन log m माइनस log n बोल सकते हैं, माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू log c अपॉन x। ठीक है, यहाँ तक log को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू c अपॉन x, और रेशनलाइज करें उधर में तो ये बनेगा 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू cx, और वी कैन से दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे द x इज इक्वल्स टू c e टू द पावर 1 अपॉन v, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5th। अब ये अपना फाइनल केस बना है, इसमें वैल्यू अप्लाई करनी है अपने को v की, तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 2nd x इज इक्वल्स टू c इंटू ई टू द पावर v की वैल्यू वहां से रहेगी x अपॉन y, सॉरी क्या रहेगी y अपॉन x रहेगी ना, y अपॉन x, तो 1 अपॉन की हो गई x अपॉन y, और ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, so it was the process of this one third question. I hope you understood the whole of the process, and the remaining part or the remaining 7 questions of this exercise we will try to solve in the next video.